Hello friends, up to now we have the better knowledge about the refraction of the light. We know the phenomenon of refraction. That means whenever the light ray enters from one medium to another medium, its path is deviated. This phenomenon is called refraction. And related with the refraction, the so many theories already we have discussed, like Snell's law, then after lateral shift, the imperant phenomena, total internal reflection. It is also based on refraction. Whenever light enters from denser to rarer, there is a possibility of total internal reflection. Then we can say for the second condition, if angle of incidence is greater than critical angle, then and then the ray is total internally reflected in same medium. So we can say total internal reflection is also the part of refraction. Then after we have derived the Lensmaker formula. This is also the part of refraction. The light enters from air to the lens, and then after lens to the again air, and we can get the image through lens. Also, we have discussed in refraction, is it? Also, we have discussed about the refraction in prism. In case of prism, also the light enter from air to the prism, and then after from prism to the again air. Now today we are going to discuss about the one more interesting case of the refraction as a rainbow. The rainbow is the important phenomenon as a refraction, and that is an interesting case of the refraction of the light also. Now, related with the rainbow, earlier we have discussed about the dispersion of the light. Whenever light enter, white light especially, enter from air to the prism, the white light is divided into its constituent colors. It's called dispersion of the light. Then we can say the example of rainbow is the two phenomena. One refraction, another as a dispersion of the light. That's why we can say the formation of the rainbow is the interesting phenomena of refraction as well as dispersion and also the case of reflection. अब अगर हमें particularly रेनबो कैसे फॉर्म होता है वो देखना है, for that just consider the condition for the formation of rainbow. कि रेनबो के लिए ऐसे कंडीशन क्या होनी चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, for the formation of the rainbow, water particles should be there in the atmosphere, and that is most probably in rainy season. Okay, after the rain there are many possibility of the water droplets present in the atmosphere. Then second, sunlight should be there. Now the position of the water droplets in sunlight, then if we are observing the rainbow in front of us, for that the water droplets should be in front of us and sun should be at back of us. अगर हम देखें कि चलो मैं यहाँ से ऐसे रेनबो ऑब्जर्व कर रहा तो वाटर ड्रॉपलेट्स मेरे सामने होने चाहिए और सन जो है वो एग्जैक्ट मेरे बैक में होना चाहिए. इसीलिए हमें कभी भी रेनबो जो है वो आफ्टरनून में नहीं दिखेगा. Always we can see the rainbow either in morning or in evening.
इसीलिए बोलेंगे कि पोजीशन ऑफ द सन इज नियर टू द हॉरिजॉन। जब भी सन ऐसे नियर टू द हॉरिजॉन हो तभी रेनबो पॉसिबल है। वाटर ड्रॉपलेट्स भी होने चाहिए। वन मोर टाइम कि हम अगर ऐसे रेनबो सामने देख रहे हैं तब वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे सामने ऐसे होने चाहिए एंड सन एग्जैक्टली एट बैक ऑफ अस। वी कैन से वी शुड बी देयर बिटवीन वाटर ड्रॉपलेट्स एंड सन। और अगर हम ऐसे कोई भी रेनबो देखें तब ऐसा बोलेंगे कि सन शुड बी बैक ऑफ अस। नाउ there is a case of the rainbow, then there are two types of rainbow, the primary rainbow and secondary rainbow. अगर हम ऐसे कंडीशन देख लें तो बोलेंगे कि there are two types of rainbow, primary and secondary rainbow. अब दोनों की कंडीशन हमें देखनी है, तो दोनों में अगर हम कॉमन फिनोमिनन देखें तब फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो वी कैन से द रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड रिफ्लेक्शन। ये तीनों का अगर कॉम्बिनेशन हो तब जाके हमें रेनबो दिखेगा। जस्ट कंसीडर वन वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। सपोज ये हमारा वाटर ड्रॉपलेट है एंड व्हेनेवर व्हाइट लाइट वी कैन से सनलाइट इज एंटर इनटू द वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अभी एक ही वाटर ड्रॉपलेट सोचे तो सनलाइट एंटर इनटू द वाटर ड्रॉपलेट। जैसे एंटर हुआ we can say there is a refraction of the light as well as dispersion of the light also, because water droplet we can say transparent medium, the ray enter from air to the denser medium, that's why the refraction as well as dispersion of the light. Then light is divided into its constituent colors, red to the violet. In between all colors are there, and whenever this dispersed light is incident on the opposite surface of the water droplet, there are two possibilities, either refraction or reflection. अगर reflection हुआ तो बोलेंगे total internal reflection। कब होगा? Whenever the angle of incident on the opposite surface of the water droplet, angle of incident is greater than critical angle, the ray is total internally reflected। अगर ये लाइट रिफ्रैक्ट हो गई तो कभी भी रेनबो की हमें कंडीशन नहीं मिलेगी। Then whenever angle of incident is greater than critical angle, the ray is reflected back. The same way, this color light is also reflected back, and whenever this light is come out from the denser to rarer medium, again the light is refracted. Then for the condition of primary rainbow we can say twice refraction। twice refraction का मतलब, अब अगर हम यहाँ पे बोल दे कि पहले अभी हम सोच रहे हैं ओनली फॉर प्राइमरी रेनबो, देन फॉर प्राइमरी रेनबो कंडीशन इज ट्वाइस रिफ्रैक्शन वंस रिफ्लेक्शन। ट्वाइस रिफ्रैक्शन मतलब जैसे सनलाइट एयर टू द वाटर ड्रॉपलेट वन टाइम रिफ्रैक्टेड, और ये जो लाइट है वो वाटर ड्रॉपलेट टू अगेन एयर सेकंड टाइम रिफ्रैक्शन, एंड वंस रिफ्लेक्शन मतलब अपोजिट सरफेस से ये लाइट जो रिफ्लेक्ट हुई वो बोलेंगे वन टाइम रिफ्लेक्टेड।
Then for the primary rainbow we can say twice refraction once reflection. अगर ऐसा हो तब हमें primary rainbow दिखेगा. And in the primary rainbow we can say the red color is at top and violet color at bottom. This is the case of regular dispersion of the light जो हमने प्रिज्म में आगे कर रखा है. The same way. अब अगर यहाँ पर ये दोनों लाइट की जगह पर ऐसा सोचे हम कि out of many water droplets present in atmosphere, just consider only 2 water droplets. And जो भी ऐसे सनलाइट बोलेंगे enter into the water droplets present in atmosphere, सभी में ऐसा dispersion होगा. But for the easy, just consider from the first water droplet only the red color coming out. ऐसा कभी भी नहीं होता कि पर्टिकुलर वाटर ड्रॉपलेट्स में से पर्टिकुलर कलर ही आते. सभी वाटर ड्रॉपलेट्स में ऐसा होगा कि इट इज डिवाइडेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूट कलर. लेकिन थोड़ा इजी करने के लिए क्या सोचेंगे हम कि फर्स्ट वाटर ड्रॉपलेट्स में से सिर्फ रेड कलर ही आ रहा है. तो यहाँ से वन टाइम रिफ्रैक्शन, वन टाइम रिफ्लेक्शन एंड अगेन सेकंड टाइम रिफ्रैक्शन. ये जो लाइट है वो ऐसे, अगर हम यहाँ पर सोचे कि कोई भी यहाँ पर ऑब्जर्वर है और वो अगर ऑब्जर्व कर रहा है तो रेड कलर की लाइट उसके आंख में जाएगी. ऐसे ही अगर हम सेकंड वाटर ड्रॉपलेट्स में से सिर्फ वायलेट कलर सोचे और ये जो भी लाइट है वो ऐसे ऑब्जर्वर की आंख में जाएगी. Then the angle made by the violet color with horizon is 40 degree and angle made by the red color with horizon is 42 degree. That means we can say angular dispersion of the red color and violet color is only 2 degree. मतलब 2 डिग्री में हमें सभी कलर्स दिखेंगे. अब अगर थोड़ा इजी करने के लिए सोचे कि जस्ट कंसीडर दिस वन इज हॉरिजॉन. जो हमारा हॉरिजॉन होगा ऐसे ये जो हम आप पे ऐसे सीधी लाइन खींच ले, दिस इज आवर हॉरिजॉन. और ये जो एंगल बनता है जस्ट कंसीडर 42 डिग्री. मतलब whatever the water droplets present in atmosphere, जो भी रेड कलर ऑब्जर्वर की आंख में आएगा वो हॉरिजॉन के साथ 42 डिग्री बनाएगा. मतलब ऐसे 3 डायमेंशन में जितने भी ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स है उसके लिए कंसीडर करो कि ये 42 डिग्री है. और अब अगर ये 42 डिग्री है तो यहाँ से ऐसे 42 डिग्री में अगर हम ऐसे हाफ सर्कल करें, जैसे यहाँ पर ऐसे हाफ सर्कल अगर हम इमेज करें तब हमें रेनबो जो है वो ऐसे हाफ सर्कल में रेड कलर दिखेगा. तो ऐसे टॉप हमें रेड कलर ऐसे हाफ सर्कुलर पार्ट दिखेगा. ऐसे ही इफ वी कंसीडर द वायलेट कलर कमिंग आउट फ्रॉम दैट और वाटर ड्रॉपलेट्स which makes angle 40 degree with the eye with horizon. तो ऐसे ही अगर हम सोच लें कि ये होरिजन और इसके लिए थोड़ा ऐसे 40 डिग्री, और अगर हम यहाँ से ऐसे सर्कल ड्रॉ कर दें हाफ सर्कल तो वो बनेगा वायलेट कलर का. और इन बिटवीन दैट 2 डिग्री एंगुलर डिस्पर्जन हमें सभी कलर्स ऐसे हाफ सर्कल के फॉर्म में दिखेंगे. और दैट्स व्हाई the rainbow we can see in the form of half circular part. One more time, जैसे ये एंगल हुआ 42 डिग्री करो और फिर उसका ऐसे हाफ सर्कल ड्रॉ करो, हॉरिजॉन तो वहां पर ही रहेगा, ऐसे हाफ सर्कल ड्रॉ करो. इसीलिए रेनबो हमें हाफ सर्कुलर पार्ट में दिखता है. और द मोस्ट इम्पोर्टेंट द कंडीशन फॉर द प्राइमरी रेनबो ट्वाइस रिफ्रैक्शन एंड once reflection, and in primary rainbow we can say red color at top
and violet color at bottom. If we are lucky, then and then we can see the secondary rainbow. In that rainy season, हर बार रेनी सीजन में हमें रेनबो नहीं दिखेगा, लेकिन अगर ऐसे प्राइमरी रेनबो का फॉर्मेशन हुआ और देन आफ्टर इफ वी आर लकी then and then we can see the secondary rainbow. First of all, just consider the condition of secondary rainbow. We can say twice refraction and twice reflection. मतलब दोनों कंडीशन हमें दो बार, प्राइमरी के लिए बोल दिया ट्वाइस रिफ्रैक्शन वंस रिफ्लेक्शन, यहाँ पर दो बार रिफ्लेक्शन दो बार रिफ्रैक्शन होगा तब जाके हमें सेकेंडरी रेनबो. एंड इन सेकेंडरी रेनबो द ऑर्डर ऑफ द कलर इज रिवर्स्ड, मीन्स वायलेट कलर एट टॉप, रेड कलर एट बॉटम. क्यों? अगर हम ऐसा सोचे कि ऐसे जस्ट कंसीडर two water droplets present in atmosphere, and whenever the sunlight enter into the water droplets present in atmosphere, ये हमने बोल दिया कि सनलाइट. अब फर्स्ट टाइम the ray is refracted, यहां से फर्स्ट टाइम रिफ्लेक्शन, अगेन रिफ्लेक्शन, एंड देन द रे कम्स आउट फ्रॉम वाटर ड्रॉपलेट टू एटमॉस्फेयर, अगेन रिफ्रैक्शन. और अगर ऐसे बोले कि ऑब्जर्वर यहां पर है तो ये लाइट इसके आंख में जाएगी. बाय द सेम वे रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन. तो whenever the ray is twice reflected, the order of the color is reversed. दो बार रिफ्लेक्शन होगा इंटरनल में, तब जो भी ऐसे पॉसिबिलिटी है कलर के ऑर्डर की वो रिवर्स हो जाएगी. एंड दैट्स व्हाई द ब्लू कलर, वायलेट कलर एट टॉप एंड रेड कलर एट बॉटम. और अगर हम एंगल सोचे तो यहां पर रेड कलर का 50 डिग्री और जो वायलेट कलर है उसका 53 डिग्री. मतलब द एंगुलर डिस्पर्सन ऑफ द सेकेंडरी रेनबो इज नियर टू 3 डिग्री. अब यहां पर ट्वाइस रिफ्लेक्शन है, इसीलिए द इंटेंसिटी ऑफ द सेकेंडरी रेनबो इज लेस देन प्राइमरी रेनबो. मतलब जो भी सेकेंडरी रेनबो है उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी ड्यू टू द ट्वाइस रिफ्लेक्शन, कि दो बार रिफ्लेक्शन हुआ इसलिए इंटेंसिटी कम हो जाएगी. तब अगर हम ऐसे लकी है तब हमें ऊपर पहले वायलेट कलर दिखेगा, देन रेड कलर तक दिखेगा, वो थोड़ा इंटेंसिटी कम वाला रेनबो, एंड अगेन वापस रेड टू वायलेट जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी वो बोलेंगे हम प्राइमरी रेनबो. तो प्राइमरी रेनबो जो है वो एज ए पूरा क्लियर दिखेगा हमें, हाई इंटेंस वाला, और उसके ऊपर हमें रिवर्स ऑर्डर में थोड़ा बहुत फेंट लेस इंटेंसिटी वाला जो भी रेनबो दिखेगा वो बोलेंगे हम सेकेंडरी. तो ओनली सेकेंडरी का फॉर्मेशन कभी भी पॉसिबल नहीं है. ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ हमें सेकेंडरी रेनबो ही दिखे और प्राइमरी ना दिखे. अगर कंडीशन हुई रेनबो की तब पहले प्राइमरी का होगा और उसके बाद अगर कुछ ऐसा हुआ ट्वाइस रिफ्लेक्शन जैसा तभी सेकेंडरी रेनबो पॉसिबल है. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जस्ट remember the condition for the primary and secondary
angular dispersion of the primary and secondary. For the primary 2 degree and for secondary it is 3 degree. और अगर ऐसे और डिटेल में जाए तो उसका एंगल होरिजोन के साथ। ये है इंफॉर्मेशन अबाउट द रेनबो। और हमें ऐसे रेनबो जो है ऑलवेज ऐसे हाफ सर्कुलर पार्ट में ही दिखेगा। और हाँ, अगर हम ऐसे अर्थ सरफेस से थोड़ा ऐसे ऊपर जाए, मतलब हाई स्टोरी बिल्डिंग से देखें, तब जो भी हाफ सर्कुलर पार्ट है वो थोड़ा हमें और डीप में दिखेगा। जैसे हम बोलते कि अगर हमें रेनबो जो है ऐसा अगर हम बोल दें कि ये रेड कलर प्राइमरी के लिए और ये वायलेट कलर, इन बिटवीन ऑल कलर्स आर देयर। और अगर हम सोचे कि हाफ सर्कुलर में दिख रहा है इतना, और अगर हम थोड़े और बहुत हाई स्टोरी बिल्डिंग पे चले जाए तो ये जो भी है वो डीप होता होगा, मतलब ये जो है सर्कुलर पार्ट थोड़ा और हमें और सर्कुलर मतलब राउंड कंप्लीट होगा मालूम पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम ऐसा सोचे कि अगर हम ऐसे प्लेन में फ्लाई कर रहे हैं, उस टाइम पर अगर रेनबो की कंडीशन देखें तो हमें ऑलमोस्ट सर्कुलर पार्ट दिखेगा। अगर हम ऐसे प्लेन में जर्नी कर रहे हैं तब हमें कुछ ऐसा मिलेगा, बिकॉज वी आर टू मच अबव फ्रॉम द हॉरिजॉन एंड एट दैट टाइम वी कैन सी द कंडीशन ऑफ रेनबो। तो हमें इतना सर्कुलर पार्ट दिखेगा जितना हम अबव जाए। और अगर हम वाटर ड्रॉपलेट से थोड़ा और ऊपर चले गए तब वापस रेनबो जो है वो हमें नहीं दिखेगा। इफ वी आर इन द रेंज ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स एंड सनलाइट, और जितना अबव हो गए उतना जो ये पार्ट है वो थोड़ा और डीप में दिखेगा। ओरिजिन पर है तब तो हमें इतना ही दिखेगा हाफ सर्कुलर पार्ट, जितना ऊपर जाए उतना ये सर्कुलर पार्ट थोड़ा और डीप होगा, मतलब सर्कल कंप्लीट होगा।